videos, then please like them, and if you find them a little bit useful to you, so please share them with your friends, family members, etc. And if you are new to my channel, please don't forget to subscribe to my channel. Do the same on the screen and start learning now. Hello everybody, welcome to Learn with Dolly. Today we'll study about Inside Our Earth Social Science chapter number 2 of CBSE class 7th. Okay, so let's get started with the topic Inside Our Earth. Now, let's start. Now, first we'll get the content of the chapter, that what we are going to study in this chapter. Okay. So here, first of all, we'll learn about Earth. Then we will learn about the layers of the Earth, rocks and minerals, explanations of each type of rock and rock cycle. Okay, so these are the things which we're gonna study in this video and in this chapter also. Now, let's move to the first topic, that is about Earth. Okay, the Earth is about 460 crore years old. We still have very limited information about what is inside our Earth. A detailed study of the interior of the Earth is done by a geologist. It's impossible to reach the center of the Earth because the temperature inside increases with the increasing depth. The temperature at the center of the Earth is estimated to be about 5000 degrees Celsius. Thus it is not possible to access direct information about the interior of the Earth. If you want the meaning of the word geologist, you can refer the description box. Now, layers of Earth. Let's move to the next topic, that is layers of Earth. Earth is divided into 3 concentric layers. Okay, how many concentric layers? 3 concentric layers, that is crust, mantle and core. Okay, it is divided into 3 concentric layers, that is crust, mantle and core. Now, we will study about the crust. Crust is the solid outermost layer. It is also called lithosphere. Crust is divided into 2 parts. Okay, how many parts? It is divided into 2 parts, that is continental crust and the oceanic crust. Okay. Now, if we talk about the continental crust, it's 35 km thick and the oceanic crust is 5 km thick. Okay, the continental crust is made up of silicon and aluminum, so it is called Sial. Now, why it is called Sial? As it is made up of silicon and aluminum. The short form for silicon we have taken Si and aluminum for Al. So here Si of what? Silicon, yes, and Al of aluminum, so it becomes Sial. Okay, let's move further. The oceanic crust is made up of silicon and magnesium, that is SiMa. Okay, here the oceanic crust is made up of silicon and magnesium, therefore it is called SiMa. So here this Si of what? Silicon, Si and magnesium for Ma, so it is called SiMa. Okay, let's move further. Okay, the average density of the crust is about 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. जो हमारी क्रस्ट की एक एवरेज डेंसिटी होती है वो होती है 3.0 पर क्यूबिक सेंटीमीटर. Okay, जो हमारे next point is the outer crust has soil. It also provides us with most of the minerals. जो हमारा crust होता है उसका जो outer crust होता है हमारा, वो जो होता है उसमें soil होती है. Okay, it also provides us with most of the minerals. उससे हमें minerals भी मिलते हैं. And crust एक ऐसी layer है जो बहुत ही पतली होती है और उसके ऊपर ही हम रहते हैं, इसलिए उसे lithosphere बोलते हैं. Let's move further now. Next we have is mantle. Okay, mantle is like that, under the crust there is a thick layer of 2900 km that is called mantle. Okay, now it is the middle layer.
ठीक है, जो हमारे ये होता है, एक हमारी जो क्रस्ट मेंटल और कोर होती है, उसमें जो मेंटल है वो क्रस्ट और कोर के बीच में आती है. इट इज मेड अप ऑफ हेवी एंड डेंस मटेरियल लाइक आयरन एंड मैग्नीशियम. ओके, so the average density ranges between 3.5 gram to 5.5 gram per cubic centimeter. इसकी जो average density होती है वो होती है 3.5 gram to 5.5 gram per cubic centimeter जो कि होते हैं. ओके, the temperature here is very very high. जो इस लेयर का टेम्परेचर होता है मेंटल का वो बहुत ही हाई होता है, और जो यहाँ पर हम क्या मिल सकता है हमें, मैग्मा. ओके, now let's move further. Here we go to our next slide is core. Now what do we understand by the word core? The core lies below the mantle and around the center of the earth. Okay, जो हमारी core होती है वो एकदम लास्ट लेयर होती है एंड वो सेंटर में होती है, सो उसे हम बेरिस्फेयर बोलते हैं. Its average radius is about its average radius is about 3500 किलोमीटर. इसका जो एवरेज रेडियस होता है वो कितना होता है आपका, 3500 किलोमीटर. अब इट इज़ मेड अप ऑफ हेवी मेटल सच एज निकल एंड आयरन. जो ये हमारा कोर होता है ना, ये बहुत हेवी मेटल से बना होता है. ओके, जैसे कि निकल एंड आयरन. ओके, जो टेम्परेचर होता है हमारी कोर का वो कितने में वैरी करता है, वो वैरी करता है 2200 डिग्री सेल्सियस या टू 5000 डिग्री सेल्सियस. ओके, एवरेज डेंसिटी रेंजेस बिटवीन 5.0 ग्राम एंड 13.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके, ये हमारा 5.0 ग्राम है और 13.0 ग्राम में हमारा ये पर क्यूबिक सेंटीमीटर एवरेज डेंसिटी इसकी होती है. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट रॉक्स एंड मिनरल्स. ओके, सो रॉक्स एंड मिनरल्स, इनसे आपको क्या दिमाग में आता है कि जो लिथोस्फेयर है वो रॉक्स और मिनरल्स की बनी है. ओके, यानी कि जो हमारी क्रस्ट है, ओके, जो हमारी क्रस्ट है वो किससे बनी है, रॉक्स एंड मिनरल्स से बनी है. ठीक है, तो जो हमारे रॉक्स हैं, रॉक्स आर दोज मटेरियल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट. रॉक्स कौन से मटेरियल्स होते हैं, जो कि हमारे अर्थ के क्रस्ट से बने होते हैं. ठीक है, वो नॉट ओनली हार्ड मटेरियल्स को इंक्लूड नहीं करते, वो सिर्फ जैसे कि ग्रेनाइट और मार्बल, लेकिन वो सॉफ्ट मटेरियल्स को भी, सब्सटेंस को भी लेते हैं, जैसे कि क्ले, चॉक, सैंड एंड सॉल्ट. ओके, नाउ अब ये तो हमने पढ़ लिया कि हमारे लिथोस्फेयर में रॉक्स एंड मिनरल्स की बनी होती है, एंड रॉक्स क्या होता है, मिनरल्स क्या होते हैं. ठीक है, तो अब व्हाट आर रॉक्स, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि रॉक्स होते क्या हैं. ठीक है, रॉक्स जो होते हैं वो मिनरल्स के बने होते हैं. ठीक है, उनके कोई भी एक केमिकल कंपोजिशन, स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन नहीं होती है. जो रॉक्स होते हैं वो होते हैं हमारे कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के. ओके, कितने टाइप्स के होते हैं हमारे, 3 टाइप्स के होते हैं. इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स. अब हम इन रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं. इन तीनों रॉक्स को हम एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं. ओके, सबसे पहले आता है हमारा इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक जो है वो एक इग्नियस वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड इग्निस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है फायर. ठीक है, अब ये बताओ कि जो हमारा इग्नियस रॉक्स हैं वो फॉर्म कैसे होते हैं, हाउ दे आर फॉर्म्ड. ओके, they are formed when molten magma cools down and then it becomes solid. Okay, जैसे देखो हमारा एक वोल्केनिक इरप्शन होता है. ठीक है, तो जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तब जो मैग्मा उससे बाहर निकलता है वो सारा मैग्मा जब ठंडा हो जाता है. ठीक है, ये ठंडा होने में ये नहीं होता कि 2-3 साल लगे, इसको ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है. ठीक है, जब ये ठंडा हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है. ठीक है, ये क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है. और जो वो सॉलिड बना होता है वो सॉलिड बन जाते हैं हमारे इग्नियस रॉक्स. ठीक है, अब इग्नियस रॉक्स पे 2 टाइप्स के होते हैं.
कितने टाइप्स के होते हैं इग्नियस रॉक्स? 2 टाइप्स के, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रॉक की तरफ। नेक्स्ट रॉक है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो सेडिमेंट्री वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड है, सेडिमेंटम से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है सेटल डाउन। ठीक है, अब ये फॉर्म कैसे होते हैं? सेम क्वेश्चन जैसे इग्नियस रॉक्स में हमने पढ़ा था, जो वो वोल्केनो है वो इरप्ट होता है, तो अब देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो जब हमारा इग्नियस रॉक्स जो है, अब वोल्केनो इरप्ट हुआ, ठीक है, मैग्मा जो था वो ठंडा हो गया, अब बन गया हमारे इग्नियस रॉक्स। जो इग्नियस रॉक्स हैं वो भी तो टूटते होंगे। जो इग्नियस रॉक्स जब टूटते हैं, व्हेन दे ब्रेक डाउन दे बिकम सेडिमेंट्स। जब वो टूट जाते हैं तो क्या बनते हैं? सेडिमेंट्स, और वो सेडिमेंट्स बनते हैं एंड दीज सेडिमेंट्स आर मेड सेडिमेंट्री रॉक, और यही सेडिमेंट्स फिर आगे जाकर सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट में, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अब मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, मेटामॉर्फोज, जिसका मतलब है चेंज ऑफ फॉर्म। अब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं? कि मतलब ऐसे भगवान जी ने वो करा, चमत्कार किया और चेंज हो गए? नहीं, जो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो एक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर में होते हैं, तब वो चेंज होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रॉक साइकिल। ठीक है, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? रॉक साइकिल। अब रॉक साइकिल क्या है कि जो हमारा वोल्केनो है वो इरप्ट हुआ। ठीक है, ये हमारा वोल्केनो है, ये हमारा वोल्केनो इरप्ट हो गया। अब ये जो है ये बन गया, इसका जो मैग्मा था, हमने क्या पढ़ा था इग्नियस रॉक कैसे बनते हैं? जो मैग्मा था वो कूल डाउन हो जाता है, ये मैग्मा जो था वो कूल डाउन हुआ और क्या बन गया? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक बनने के बाद जब इग्नियस रॉक्स जो थे वो ब्रेक डाउन हुए, यानी कि टूटे, व्हेन दे गॉट ब्रेक डाउन, तब ये क्या बन गए? हमारे सेडिमेंट्स। क्या पढ़ाया था? क्या बन गया हमारे? ये सेडिमेंट्स। ठीक है, जब ये हमारे वोल्केनो इरप्ट हुआ, इग्नियस रॉक बन गए। इग्नियस रॉक्स जब टूटे तो ये बन गए हमारे क्या? सेडिमेंट। ठीक है, अब सेडिमेंट जब बन गए, सेडिमेंट से क्या बना हमारा? सेडिमेंट से बना हमारा सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक्स जो थे, हमने क्या पढ़ा था कि इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स को जब हम मिक्स करते हैं, व्हेन दीज आर मिक्स्ड देन दे मेक, एंड व्हेन दे आर केप्ट अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर देन दे आर मेड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, सिंपल है कि जब ये मिक्स हो जाते हैं ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, तब बन जाते हैं ये हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तब क्या होता है? ऐसा तो नहीं होता कि सारे इग्नियस रॉक्स जो हैं वो सारे जब टूट जाएंगे तब सेडिमेंट्री बनेंगे, नहीं, वो भी रहते हैं और कुछ टूट जाते हैं तो सेडिमेंट्स टू सेडिमेंट्री, और वो सेडिमेंट्री और जो इग्नियस रॉक्स हैं उनको मिक्स करके हम क्या बना देते हैं? हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक बनने के बाद सेम प्रोसेस, मेटामॉर्फिक रॉक वापस से मैग्मा बन जाता है। ठीक है, एंड फिर वो मैग्मा वोल्केनिक इरप्शन, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, मैग्मा, वही सेम साइकिल रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो ये थी हमारी रॉक साइकिल। ओके, सो that's all for today. This was our session of Inside Our Earth topic. If you have any doubt on this topic, you can answer me in the chat box or the comment section. I'll answer to your question through the video. Thank you. And if you want that I should make a video on the question answers and the back exercise of this, so I will make that. If you will tell about CBSE, I'll make of CBSE, and if you say of NCERT, I will make surely of NCERT. Please tell me in the comment section that do you need the question answers and the back exercise of this or not. Thanks for watching. Hope you enjoyed and learned so much from the video.